So can you make me a host or something that I can share my screen? Yes, Prabhuji, please. You can share your screen now. Yes. So I think all of you must be seeing. Is it Yes, visible, Prabhuji. the screen? Okay. Hare Krishna. So thank you, Prabhuji, for inviting. And अभी कुछ आया था कि हिंदी और उड़िया में बोलने के लिए, तो हम ट्राई करेंगे उड़िया में ही बोलने के लिए और हिंदी में. Prabhuji, actually, there are devotees who have joined from outside Odisha also. Yes, yes, So yes. it will be better if we have it in English, and little bit of Hindi is fine also in between. Okay, okay. Hindi and English I tell. Yes, Because yes. some students also, they joined from this side also. So that is Sure, what Prabhuji. our students, Yes, they cannot understand. Some people, they don't know English. So the sound itself is a big science in our Vedic knowledge. That is why the sound has many, many effects on our cognitive behavior and psychotherapy. So psychotherapy is one of the biggest technology. What people are thinking about, that is how the sound affect on your consciousness, how the sound affect in our brain, how the science affect in different activities of our body. That's why in our Vedic knowledge, it is called the Sabda Brahma. Sabda Brahma, if you take that Sabda Brahma as a biggest science, that by that way you can even cure all kind of disease also. So in Oxford University, Professor Kill, he used to do a research that by using the music therapy, he could able to cure many, many kind of disease. So that is why the ये जो साउंड है, इसको हमारा वेद में बोला जाता है शब्द ब्रह्म. शब्द ब्रह्म, जो शब्द के माध्यम से आप ब्रह्म तक, जो कि unreachable part of the universe, you can reach just simply by the sound vibration. तो इसीलिए आप देखते हैं कि कितना साउंड का हमारा जीवन में इफेक्ट है. तो इसीलिए ये जो साउंड है, जो पॉजिटिव साउंड है, दिस एक्चुअली जो पॉजिटिव साउंड है वो ग्रोथ होता है, जो नेगेटिव साउंड है ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम वो डिमिनिश हो जाता है. तो इसलिए साउंड कैन डाइवर्ट एनीवन्स अटेंशन. जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, सडनली कोई बोल दिया, पीछे से बुला दिया, सडनली हम लोग बैक, क्यों? वो अटेंशन. साउंड प्रोड्यूस पावरफुल रिएक्शन आल्सो. जैसे you are coming from your going to college and somebody will tell you, oh, you have failed this exam or you pass out this exam, immediately your mood changes. So a powerful reaction. So scholars have fascinated between to understand the sound and emotion. Like nowadays robots, they could able to do many tasks. And now I was just seeing in the Europe, the Arabian country, one of the king, he got a robot. That robot will see his security. So what he does, he just give a little clap, then the entire that robot get up and catch his catch his gun and start firing to others. So this is the way of that
the powerful reaction, and that emotion and the sound are correlated. That's why modern neuroscience, they have fascinating ideas and understanding. That's why we need to understand how the sound penetrates in and the sound is the beginning of all material creation, and everywhere there is sound. Because of this sound, everything is created. And because of the sound, there are so many chaos in the society. Because of the sound, there are so many good things in the society. Because of the sound, there are unlimited fusion like a nuclear reactor. They start reacting each other and grows unlimitedly. This sound also, it is like that. That is why in Oriya we call it a Tunda Baida. Tunda Baida means जो कि so is a sound हमारा सब everything it affects on everything. So the sound has many kinds of sound, and they जो sound है वो कभी vacuum में जब travel करता है उसका different category of wavelength, और जब वो गैस में ट्रेवल करता है उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ, और जब लिक्विड मीडियम में जाता है जब पानी के अंदर तो उसमें भी दूसरा तरह का साउंड प्रोपगेशन होता है, और जब सॉलिड में ट्रांसमिट होता है उसका डिफरेंट। इसीलिए जो साउंड होता है आप देखेंगे बहुत टाइम जब आप ये कोई बाढ़ का जैसे समर सीजन में हम लोग कोकिल का जो साउंड सुनते हैं बहुत आनंद देता है। हम सोचते कहाँ पर यहाँ बैठा है तो हम ढूंढते रहते कहाँ से वो साउंड आ रहा है। और कभी जस्ट जब एक टाइगर जब साउंड करता है तो वही टाइम हम लोग देखते इधर उधर 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 ये कहाँ से ये डरावना सा आ जाता। जो ये जो साउंड है जब मनी इफेक्ट, जैसे एक प्योर साउंड आप देखेंगे जो बर्ड्स वो लोग पूरा गुस्सा करके झगड़ा भी करते हैं, आप लगेगा बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि वो जो झगड़ा करते हैं उनको वो दे डोंट फाइट, कभी भी वो लोग का फाइट नहीं होता है कि हमारा जो मटेरियल पोजीशन के लिए वो फाइट होता है, इसलिए वो शब्द हमको आनंद मिलता है। आप कोई मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि वेरी बोरिंग साउंड ऑलवेज, तो ऐसे बहुत सारी साउंड है जो कि कुछ साउंड आनंद देता है और कुछ दुख भी देता है और कुछ भय भी देता है। तो इसीलिए ये जो पूरा साउंड है हमारा जो ब्रेन साउंड का इफेक्ट है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट। पहला इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन आवर ब्रेन। तो ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो क्या हमारा ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर देता है और हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर देता है और ब्रेन वेव को भी रिजोनेंट ब्रेन वेव को भी कंट्रोल करता है, जो कि 12 साइकिल्स पर सेकेंड में वो जो ब्रेन वेव चलता है उसको भी कंट्रोल कर देता है। इतना इसका इफेक्ट है साइकोलॉजिकल साउंड। जैसे आप देखेंगे हमारा जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड, तो कोविड लोग साउंड से ही मर जाते हैं। देखिए कोविड किसको नहीं हुआ अभी, बहुत लोग ऐसे सुन के ही मर जाते हैं घर के अंदर रह के, और बैठ के घर में वो लोग सुनते हैं कि क्या होता है दुनिया में, वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये जो साउंड का जितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये हमारा ये ब्रीदिंग भी कंट्रोल कर देता है और हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर देता है। इसलिए द बर्ड म्यूजिक बर्ड्स एंड रेचुरल रिजोनेंट, जब बर्ड्स जब शुरू करता है, जैसे हम शंख बजाते हैं सुबह,
तो शंख का जो साउंड वाइब्रेशन है वो हमारा बॉडी के अंदर वो ट्रैवल करता है, और वो ट्रैवल में और जितना जो सारी नस, सारी वेन्स जो डैमेज्ड हो गया उसको रिपेयर भी कर देता है। इसीलिए शंख जो पुण्य बोलते हैं, शंख का साउंड जो पुण्य होता है उसका जो वेव लेंथ होता है, दे आर वेरी फ्रेंडली, एंड व्हेन दे ट्रैवल इन आवर बॉडी, जब बॉडी के अंदर वो जाते हैं, वो सारी नस जो नस कटा हुआ होता है अंदर में, बहुत सारी नस को जो बहुत सारी ये डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर कर करके पूरा कंप्लीट बॉडी को पूरा कंप्लीटली बाय हियरिंग जस्ट, ये जो शंख का नाद सुनने से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चरल और मेंटल बिहेवियर पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है सेफ साउंड ऑलवेज। लेकिन आप देखिए घर जाएंगे मार्केट में, कोई बहुत हॉर्न बजा रहा है, टा 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 टा, ऑलवेज वो साउंड आपको इरिटेशन देगा, क्योंकि वो हम देखेंगे कि कितना हमारा ब्रेन के ऊपर ब्रेन के ऊपर असर करता है। तो इसीलिए कोई आदमी को बोलिए डेली, इवन वाटर को, एक जर्मन साइंटिस्ट वो वाटर को ऐसे एक एवरी डे वो उसको बोलेंगे ये गंदा वाटर है, गंदा वाटर है, गंदा वाटर है, वो वाटर बहुत कम दिन में गंदा हो जाता है, इवन वाटर चेंजेस। तो इसलिए एंड बिहेवियरल इफेक्ट इज जब डिपेंड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड, जब हमारा डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जब बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है वो आनंद मिलता है। जैसे किसी को लेके हस्बैंड लेके गया और थोड़ा मार्केटिंग कर दिया तो वाइफ का मूड चेंज हो गया, आनंद हो गया। सो समटाइम एज ए कॉग्निटिव एक्चुअली, so cognitive is therapy is one of the biggest science, and cognitive therapy also, that its brain waves they control, and they can understand the cognitive therapy, they try to understand the effect of the sound on the consciousness. So this way they say how the sound vibrate travel from one place to another place. They say Newton's cradle, it is, you see, when जो न्यूटन्स क्रेडल होता है, हम एक ये जो क्रेडल को ऊपर उठाते हैं और उसको जब छोड़ देते हैं वो जाके पूरा बहुत वो जो स्पेयर जाके एक स्पेयर को टच होता है, लेकिन इफेक्ट होता है वो कॉर्नर वाला स्पेयर को जाके घूम जाता है बाहर। तो जैसे ऐसे ट्रैवल होता है हमारा जो बॉडी में है, हमारा भी जो साउंड ट्रैवल होता है एग्जैक्टली द सिमिलर वे। तो कैसे साउंड ट्रैवल होता है? साउंड हमारा जो ईयर कैनल होता है उसके अंदर में आता है, आके जो ईयर जो मिडिल ईयर में देन ईयर ड्रम में वो लगता है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं हमारा बॉडी में हम लोग को पता नहीं कितना तरह का फिल्टर रहता है, और वो साउंड को एम्पलीफाई के लिए तीन तरह का बोन होता है। एंड दिस बोन जो 3 बोन होता है जो कि हमारा ये ड्रम को ऐसे टच करके रहता है, और वो बोन होता है मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। दिस 3 वो वाइब्रेट जब टच होता है वो वाइब्रेशन जाता है और ट्रांसमिट होता है स्टेप, और जब वहां जाता है और वही से वो टच करता है स्टेप वो पुश करता है जो जाके किसको, क्लोकिया को टच करता है। एंड क्लोकिया इज ए लिक्विड सब्सटेंस, और लिक्विड में वो क्लोकिया के अंदर बहुत सारी, जैसे हमारा हारमोनियम में बहुत सारी टोन्स होता है, इन द हारमोनियम यू कैन प्ले, हमारा हम जो भी दबाते हैं वो टोन निकल जाता है। तो वैसे क्लोकिया में वैसे ही बहुत सारे ऐसे होता है, एंड वो बोला जाता है वो जो है लाइक ए फाइबर जैसे होता है,
और जैसे साउंड ट्रैवल करता है उसके अंदर, जो लिक्विड के अंदर, वो एग्जैक्टली जो साउंड का ऑडिटरी फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी उसका जो वाइब्रेशन है, उसके साथ जब मैच होता है वो उसको पुश करता है। और जब पुश करता है आपका वहीं पे हेयर सेल्स होता है, वो हेयर सेल्स क्या होता है, मूव करता है। वो हेयर सेल मूव करता है, दैट इज वाई वो हेयर सेल के मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट। तो हेयर सेल कभी ज्यादा मूव करता है जब एक आदमी वो स्ट्रेस होता है, वो ज्यादा मूव करता है, और जब साउंड ज्यादा होता है, जो डिस्टर्बिंग होता है, वही टाइम ज्यादा मूव करता है। तो उसको बोला जाता है दी हाई रेजोनेंट, जो कि हमको पेन देता है, प्लेजर नहीं देता है। और जब ये जो मूवमेंट करता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर में वो एक काइंड ऑफ जैसे लिक्विड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम को जो कि कनेक्ट कर देता है। तो वो जो ऑडिटरी पार्ट, इट अफेक्ट ऑन योर मेमोरी, इट अफेक्ट ऑन योर कॉन्शियसनेस, इट अफेक्ट हमारा जो इमोशन है, और सब कुछ होने के बाद देन हम लोग को रेस्पॉन्स में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये जो इसको बोला जाता है दी न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप देखेंगे तो डेली कोई आदमी के पास हम लोग बैठते हैं, वो डेली आपको बोलता है अच्छा चीज, आपका ब्रेन, आपका जो ये है मन का भावना, वो चेंज होते होते जाएगा। चेंज कोई हमको खराब बोलेगा तो माइंड का जैसे ही चेंज होता जाएगा। तो इसको बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन। जो वो क्या होता है, वो होता है जब हमारा ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स है। वो जो न्यूरॉन्स होता है, जैसे कैरियर आपका, जैसे आप एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस बरहमपुर में, आप पोस्ट ऑफिस में एक लेटर सबमिट किए, और वो लेटर जाके दिल्ली में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, जैसे यह लेटर जाके फिर जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से लाइक दैट ऐसे होके दिल्ली तक वो लेटर जाएगा। तो वो जब कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया और कहीं पे कुछ ऐसे फ्लॉड हो गया और डिवास्टेशन हो गया, जो कि ये लेटर वहां तक ट्रैवल नहीं करेगा, कोई भी रास्ते में रह जाएगा। तो वैसे जो हमारा ब्रेन में होता है, वैसे एक न्यूरॉन से होता है कि दूसरा न्यूरॉन से वो कम्युनिकेशन करता है, जो मैसेज भेजता है। और जब ये जो न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन को हम लोग जब मैसेज नहीं भेज पाते हैं, उसको हम लोग क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन डल हो जाता है, और बहुत टाइम हम लोग पूरा ये जो ब्रेन को जो उसको जो एक साइड ऑफ द ब्रेन को फंक्शनल नहीं होगा। तो इसलिए बहुत लोग जब देयर ब्रेन बिकेम इनएफेक्टिव, इसीलिए कब ये ब्रेन, ये जो न्यूरल स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन को न्यूरॉन कैसे जुड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं द न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब आपके अंदर द न्यूरॉन वो जो इलेक्ट्रोड भेजेंगे, वो कंटिन्यूअसली जब फायर होगा, उसका पाथ क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद कनेक्शन आ जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब सो रहा है, भी इवन जन्म जब लेता है, उसका पहले कुछ ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो सब खाना खा लेता है, सो लेता है, सब कुछ करता है, क्योंकि उसका वो ब्रेन वेव स्लोली स्लोली डेवलप होता जाता है। तो वैसे हमारा भी, इसलिए द यंग टाइम पे वी नीड टू डू द थिंग्स मोर, वी शुड बी एक्टिव इन यंग टाइम। इसलिए हम लोग को यंग समय में ज्यादा सोना नहीं चाहिए। यंग समय में 2 घंटा 4 घंटा सोना चाहिए, और दिन भर माइंड को पॉजिटिव एंगेजमेंट में करने से ये ब्रेन स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। जब यंग टाइम में ये ब्रेन वायरिंग नहीं होगा, तो ओल्ड एज में ब्रेन डल हो जाता है। आप देखेंगे बहुत लोग जब 45-50 हो जाता है,
वो लोग कभी नहीं उनका ब्रेन डेवलप होता है, वैसे ही वैसे वो लोग और ब्रेन को श्रिंकन हो जाता है। इसलिए यूथ टाइम में जो हमारा आईआईटी में भी 24 साल तक 28 साल तक कोई एंट्री कर पाएगा, उसके बाद नहीं है, क्योंकि 28 के बाद और ब्रेन डिसफंक्शनल, ये जो न्यूरो स्ट्रक्चर दे कनेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए दिस न्यूरोलॉजिकल इसलिए यंग ब्रेन कभी भी आइडियल नहीं रहना चाहिए, ऑलवेज दे शुड बी एंगेज। तो दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी मटेरियल साउंड ये जो होता है, तो ये ऑलवेज क्रिएट ए डिस्टर्बेंस। जैसे पेपर, अर्ली मॉर्निंग जब हम पेपर पढ़ते हैं तो माइंड को पूरा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि दैट क्रिएट ए हैप्पीजेड वेव फॉर्म। जो सिस्टमेटिक वेव होता है वो हमारा ब्रेन को आनंद देता है। जो ब्रेन का जो वेव जाता है, जब कोई हैप्पीजेडली जाता है तो ब्रेन को इफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए ये जो ब्रेन हमारा जो मटेरियल साउंड वो क्या करता है, हमको जब हमारा एक भी सेंस को आनंद देता है, जैसे टेस्ट, स्मेल, साउंड एंड द टच, इनको कोई भी एक को हमको आनंद मिलता है कि हम सोचते हैं यस ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है उसको सैटिस्फाई करने से हमारा अंदर में हैबिट में बदल जाता है। जैसे एक आदमी घर आता है और घर आने के बाद डेली वो घर आने के बाद टीवी को ऑन करता है, और टीवी को ऑन करने के बाद एक बर्गर लेता है, खाता है और एक कॉफी खाता है। तो ऐसे करने से बहुत दिन तक ऐसे करने से उसके बाद एक दिन नहीं किया तो वो सोचेगा कि जब टीवी देखता था वही सोचेगा कि मैं कुछ मिस कर दिया, क्योंकि that will poke to the brain, please bring a burger, please bring a ये जो कॉफी और टी फॉर मी। तो उसको बोला जाता है हैबिट। सो हैबिट कैसे होता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और पहले साइकिल सीख रहे हैं, साइकिल को बहुत डिफिकल्ट में आप चला रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं सीखने के लिए, और जब सीख जाते हैं उसके बाद आपको इजी हो जाता है, साइकिल ऐसे पकड़ के आप चला लेते हैं और 100 किलोमीटर भी ट्रैवल कर देते हैं। उसके बाद आपको ऐसे स्टेज आता है तो कॉन्शियसली बट नो डिफिकल्टी, इजीली यू कैन ट्राई। और जब एक स्टेज आता है अनकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस में नहीं है लेकिन इजीली ड्राइव करते हैं, बिना हाथ पकड़ के हम लोग साइकिल भी चला देते हैं। तो ये होता है 3 स्टेज। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम ये जो 5 सेंस को सपोर्ट करते हैं, इसको हमारा हैबिट में बदल जाता है, जो कि वेरी डेंजरस है हमारा जीवन के लिए। लेकिन जैसे साउंड ऑफ द मटेरियल world always try to drag a different direction में, and that is why but we are not this body, we are spirit soul, and जो sound spirit soul को जरूरत है हम लोग को वही sound लेना चाहिए। तो क्या वो sound है? तो that real sound is, जब हमारा material world का sound देखेंगे ऑलवेज आप देखेंगे इसे कैश, कहीं पे जल गया, कहाँ पर भूकंप हो गया, कहाँ पर लोग मर गए और कहाँ पर इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है। तो कहीं में भी आपको देखेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में डेली पेपर खोलिए, कोई किसी को गाली दिया, कोई कुछ किया, कोई ऐसे। तो ऐसे जब साउंड जाता है हमारा ब्रेन के अंदर, वो ब्रेन के अंदर जैसे एक परमानेंट शॉर्टकट बन जाता है। जो परमानेंट शॉर्टकट बनता है वो ब्रेन स्ट्रक्चर को, इसको हैबिट में बदल जाता है। जैसे कोई आदमी पेपर पढ़ा तो एक दिन पेपर नहीं मिला, वो नेक्स्ट डे पागल जैसे हो जाता है। तो इसीलिए तो ये होता है द हैबिट। तो वैसे बट ये जो साउंड है, प्योर साउंड, जो प्योर साउंड है हम उसको बोला जाता है ट्रांसडेंटल साउंड।
जो प्योर साउंड होता है मटेरियल वर्ल्ड का, वो ट्रांसडेंटल साउंड। एंड ये जो ट्रांसडेंटल साउंड कैसे मिलता है इधर, सो ये जो ट्रांसडेंटल साउंड है, ये साउंड एक दिस इधर लिखा चैतन्य चरितमृत में, से पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिला पूर्व प्रेम भंडार मुद्रा उड़ालिला पंच मिली लुटे प्रेम करे आस्वादन यत यत पिए तृष्णा बड़े अनुक्षण। सो ये जो ट्रांसडेंटल साउंड कौन लेके आए? पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु लेके आए थे। एक्चुअली ये साउंड कृष्ण देके गए थे, बट nobody could able to open the covering of that sound। वो साउंड का कवर नहीं खोल पाते। तो उसके बाद कौन? पंचतत्व आए, और पंचतत्व वो साउंड को वो कवरिंग खोले और खुद इतना खाए जितना पीते थे और सुनते थे उतना ही उनका कमी दे। वो सोच है इतना भी हमारा पूरा। तो इसको उसके बाद क्या हुआ? जो साउंड है जो इन द मटेरियल वर्ल्ड जो ट्रांसडेंटल साउंड आया, वो कभी कोई कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एक बम गिरा था, एंड इट वाज इन 1938, एंड अभी तक उसका रिएक्शन नहीं गया। एक्चुअली हिरोशिमा नागासाकी उसको बोला जाता है अनलिमिटेड फ्यूजन। लेकिन इधर ये जो मटेरियल वर्ल्ड में ये जो साउंड आया, इधर पात्र प्रात विचार नहीं स्तन यही यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान उछिला प्रेम बन्या चौदी के बेड़ायो स्त्री वृद्ध बालक युव सवार डुबायो सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम बन्या डुबिला जगतेरो जन। ये जो मटेरियल जो साउंड जो ट्रांसडेंटल साउंड इन द मटेरियल हुआ, वो ऐसे रिएक्शन क्रिएट किया कि वृद्ध जड़ अंधा सब लोगों को जो कभी नहीं थे, पापी दुराचार दुर्जन पंगु जड़ अंध सबको ये जो ट्रांसडेंटल जो साउंड है, ये साउंड सबके अंदर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो ये जो साउंड है, ये साउंड होता है स्पिरिचुअल साउंड ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे सुबह हम भागवतम बैठ के सुनते हैं, ये भी साउंड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जब सुनते हैं डेली आप लोग, एंड हम बहुत खुश है कि आप लोग डेली जब हम बरहमपुर जाते हैं देखते हैं एटलीस्ट 50 लोग डेली सुनते हैं सुबह शाम भागवतम। एंड वही ही हमारा माइंड ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करता है, और हमको पता नहीं चलता कि कैसे हमारा न्यूरो वायरिंग टेक्स प्लेस, उसको हमको पता नहीं, लेकिन इनसाइड वो इतना क्रिएट करता है। वो जैसे जो परीक्षित महाराज जब अंदर में थे मदर उत्तरा के गर्भ में, जैसे अश्वत्थामा ने जो न्यूक्लियर वेपन जब छोड़े थे, वही टाइम भगवान जैसे आके उसको पूरा कवर कर दिए थे एम्ब्रियो को। जैसे हमारा कॉन्शियसनेस को ये जो डेवलप्ड ब्रेन सेल आके ऐसे ही कवर करके रख देते हैं, जो कि मटेरियल साउंड मटेरियल डिस्ट्रेस हमारा अंदर में वो घुस नहीं जाए। तो इसलिए ये जो ट्रांसडेंटल साउंड डेली सुनने के लिए हमारा जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने बोले कि जो भक्त एक दिन भी छोड़ दिया ये जो भागवतम सुनना, वही दिन उसका वही दिन व्यर्थ चला गया। तो इसीलिए कोई एक भी दिन हम लोग कितना भी काम हो, आजकल तो ऐसे भी जूम में वही साउंड खोल देते हैं और खोल के घर का काम भी कर सकते हैं और सुनते जाएंगे।
ये तो आजकल लाइव है, घर के अंदर रह के भी सुन सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं जब ये साउंड हम सुनते हैं, ये जो प्योर साउंड जो कि प्योरेस्ट है, इसे आप जाएंगे साउंड तो आप जाएंगे, घर का कोई नॉक कर रहा है तो कोई इंफॉर्मेशन है, ऐसे आप इंफॉर्मेशन देख देख के जाएंगे। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो वेव हमारा अंदर में जब जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसडेंटल साउंड। और जब ये साउंड जाता है वो हमारा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करता है। और जब जो वंस जो सुनता है वो पूरा स्पिरिचुअली एनरिच्ड हो जाता है, सब सुनता है। वो जितना भी पापी हो, जब हरे कृष्णा महामंत्र सुनता है वो सोचता है। इवन हमारा गांव में हमारा गांव के पास एक आदमी था, वो डेली चुराता था कहीं पे कोई के किसी का खेत से कुछ लेगा धान, किसी का घर से कुछ लेगा। लेकिन जब नाम यज्ञ होता था 24 प्रहर, वो 3 दिन कहीं से चुराए नहीं, वो कभी चुराएगा नहीं, वो 3 दिन नहीं चुराएगा। लेकिन क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र सुनता था तो गांव के चार तरफ आता था, तो इसलिए वो नहीं चुराता था। लेकिन दूसरा दिन जाके फिर चुराएगा जब हरे के नाम संकीर्तन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भगवान के नाम में इतना पावर है, तो इसलिए वो सरपास हो जाता है। जो हमारा जो माइंड, द स्टेज ऑफ सेंस, माइंड एंड इंटेलिजेंस के ऊपर चले जाता है, जो कि ये आपको भी, आपका कॉन्शियसनेस को भी ये जो 3 स्टेज के ऊपर ले जाता है। और द मोस्ट प्योरेस्ट साउंड इज चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। It surpasses all lower status of consciousness. No lower status. Like you see the sound of this. Prabhupada, ये जो पिक्चर हम लोगों को दिए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये जो ट्रांसडेंटल साउंड है। ये जो साउंड बाय दिस फ्लूट लॉर्ड कृष्णा कंट्रोल्स एवरीवन। ये जो साउंड है, ये साउंड से पेड़ को कंट्रोल करते, गाय को कंट्रोल करते, जमुना के रिवर को भी कंट्रोल करते, स्वान को कंट्रोल करते, फ्लावर को कंट्रोल करते, सब को कंट्रोल करते। और ये साउंड इतना सूदिंग है, जो जैसे समझेगा वैसे उसको समझ में आएगा। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछे हरिदास ठाकुर को, जो जड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो लोग को कैसे उद्धार होगा? तो चैतन्य हरिदास ठाकुर बोले, जो भक्त लोग बाहर जाते हैं और हरिनाम संकीर्तन होता है, जब हरिनाम संकीर्तन होता है, हजार हजार सारी जीव, इवन वृक्ष भी, वो ऐसे हमारा एक एक्सपीरियंस है। हम जब कानपुर IIT में पढ़ते थे, वही टाइम हमारा सार के घर में हम लोग बैठ के जप करते थे। और सार के जो नेबर है, उनके घर में एक कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को कहते मेर्सिया पत्र गछ वो एक था वो बगल में, और हम लोग जाते थे वहीं से लेने के लिए। लेकिन जब लेके हम जाएंगे, उनका जो मैडम है वो बहुत गाली देते थे, हे तुम लोग चोर हो, तुम साधु के वेश में सब चोरी करते हो, ये करते हो, ऐसे गाली देते थे। लेकिन एक साल सब लोग इस साइड बैठ के जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो जो कड़ी पत्ता उनके घर के था, वो कड़ी पत्ता ऐसे घूम के ऐसे बेंट होके इस साइड आ गया, सार के घर के तरफ, तो सार के साइड में आ गया। तो उसके बाद हम लोग कितना कड़ी पत्ता लेते थे, फिर भी वो गाली नहीं देते थे। तो ये जो ट्रांसडेंटल साउंड है, ये इवन हमारा जो हमारा
ये जो ट्रांसडेंटल साउंड है, तो हमारा कॉन्शियसनेस नहीं, इवन एक वृक्ष का कॉन्शियसनेस भी चेंज कर देता है। तो ये तो तो जब भगवान ऐसे जो आम की पेड़ के नीचे जाते थे, जैसे एक बार एक एबोरिजिन को क्या बोला जाता है, आई डोंट नो, तो जो फल जो बेचते हैं, जो फल वाला एक बार भगवान के दर्शन के लिए वो सोच रही थी, बहुत सोची। तो वो जो सोचे कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, और भगवान को तो दर्शन नहीं होगा क्योंकि वो नंद बाबा के, नंद राजा के बेटा है, तो हमारा जैसे आदमी को कौन, वो क्यों आएगा देखने के लिए। तो वो सोचे पहले, वो जब बोले कि हम ये थोड़ा फल बेचने के लिए जाए, और वो जब आए फल बेचने के लिए नंद गांव में, वो भगवान गोकुल में जब फल बेचने के लिए आए थे, तो वही टाइम नंद बाबा के घर में तो एक दिन आए, फल फल बोल के गए, फिर देखे कि नंद बाबा के घर बंद था, और दूसरा दिन फिर आए फल बेचने के लिए, ये आम है, कखारू है, सब कुछ ऐसे बोलते गए, और फिर भी कोई नहीं आया। और उनका इंटेंसिटी इतना बढ़ गया भगवान को दर्शन के लिए। थर्ड दिन जब आए फल बेचने के लिए, वो और फल के बारे में भूल गए, वो बेचने लगे कृष्णा 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 कृष्णा, और कृष्णा अंदर में थे। और अंदर में जब कृष्ण ने सुने कि वही मेरा भक्त मुझे बुला रहे हैं, तो तुरंत 2-3 ग्रेन लेके भगवान अपना 2-3 ग्रेन लेके आ गए वो फल बेचने वाले के पास। ये होता है द प्यूरेस्ट साउंड। जब जो प्यूरेस्ट साउंड क्या होता है, आप जो काम के लिए करते हैं वो काम ही आप भूल जाते हैं। जैसे हमारा जो काम करते हैं आप, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस होते हैं, आप जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, क्योंकि वो भगवान की नाम ही आपके अंदर में घूमते रहते हैं। कोई आप काम, जैसे मटेरियल काम भी हम लोग करते हैं वो भी भूल जाते हैं, लेकिन मटेरियल काम होता है और वो परफेक्शन लेवल पे होता है। जैसे ये फ्रूट वेंडर भूल गए, वो खुद आए थे फल बेचने के लिए, लेकिन फल भूल गए, वो भगवान के नाम उच्चारण लगे। तो वैसे जब कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, कृष्ण तुरंत आए, उनका फल भी लेके गए, और जब देखे भगवान को, और भगवान को माँ यशोदा पूरा दरवाजा बंद करके रखते थे, क्योंकि कहाँ चला जाएगा, जो तृणाव्रत आया था उसको लेके चला गया था, तो भगवान को पूरा बंद करके कमरा में रखे थे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़े थे। लेकिन कैसे भगवान का दरवाजा खुल गया, केवल ये जो वाइब्रेशन हमारा अंदर में, जैसे शुद्ध नाम हम लोग जप करेंगे, तब ये भगवान का दरवाजा खोल के आपके पास आएंगे। और आप सोचेंगे हमारा फल ही कैसे बेचेंगे, तो आपका फल ना बेचना होगा ना कुछ होगा। भगवान जब आए, ये फल वाला अपना सारी जितना भी फल था उसको दे दिए, हे भगवान आज मुझे इतना सुंदर रूप दर्शन हुआ, कृष्ण के इतना सुंदर रूप, वो फल वाला दे दिए, पूरा सारी फ्रूट्स दे दिए उनको, और इन रिटर्न कृष्ण पूरा झोली में भर दिए, जो कि जिंदगी में कभी भी सोचे नहीं हुए। तो ये होता है स्पिरिचुअल गिफ्ट। जब भगवान गिफ्ट देते हैं वो स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है। तो ऐसे इस सुंदर जो भगवान की जो महिमा है, तो ये जो ट्रांसडेंटल साउंड, ये ऑलरेडी वेरीफाइड बाय ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, वो लोग स्टडी करते हैं। आप देखिए एक डॉक्टर विवेक बलूजा, a great neurologist in Henry Ford Hospital in Detroit. So वो स्टडी किए हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, कि आप देखिए जब हरे कृष्ण महामंत्र, जब पंचतत्व एंड हरे कृष्ण महामंत्र मेडिटेशन करते हैं,
you can see our sound wave, they are very pattern. उसका कुछ आप देखेंगे जैसे एक आदमी जब दिमाग ठीक नहीं है, आज जैसे पागल जैसे काम करता रहेगा। जब जो आदमी वेरी कूल एंड काम है, वो एक काम के बाद एक काम के बाद वो सिस्टमेटिकली करेगा। तो आप देख सकते हैं इस वेव फॉर्म को, जो ब्रेन का जो है वो मैपिंग है। वो ब्रेन का मैपिंग से आप क्या मिलता है, यू कैन सी दैट द ब्रेन इज नॉट ए ऑसिलेटिंग, it is resonating in natural way. In natural way it affects in our brain consciousness. So इसमें है, तो इसीलिए ये जो भगवान की नाम और भगवान की कथा और ये सारी चीज भगवान भक्त के संग में रह के, और इसके धीरे धीरे आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उधर चेंज होता जाएगा। आप एक दिन देखेंगे आपका कंप्लीट बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल थिंग। इसलिए वही दिन मटेरियल कुछ टच नहीं कर पाएगा, आप भूल जाएंगे क्या मटेरियल। तो यही टाइम आप गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते। तो इसीलिए ये जो शब्द है बहुत बड़ा हमारा जीवन में उसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट होता है। और जो ये जो शब्द है, हम ये शब्द को जब आप सिंथेसिस करेंगे, डेली आप मेडिटेशन करेंगे, आप देखेंगे ये शब्द आपके अंदर the process of positiveness and it will develop। हमारा जो कॉन्शियसनेस डेली डेवलप होगा, और एक दिन देखेंगे आपकी कॉन्शियसनेस इतना प्योर हो जाएगा, आप मटेरियल काम कुकिंग करते रहेंगे, लेकिन आप सोचते रहेंगे भगवान के बारे में। और इन द मेन टाइम कुकिंग भी हो जाएगा, ऑफरिंग भी हो जाएगा, प्रसादम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग मटेरियल चीज के लिए हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, सब करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए भगवान की काम करने से ये सारी चीज मटेरियल चीज वह सब भगवान कर रहे हैं। हमारा अंदर में ये डिजायर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो मटेरियल साउंड एनर्जी इज माया एंड दे हैव मेनी पोटेंशियल्स, हम लोग को वो पता नहीं चलेगा। हम लोग सोचेंगे भी तो भगवान का इतना एनर्जी लेवल है हमारा जिंदगी में, हम लोग उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमारा क्या है, हम लोग जस्ट सिंपली हमारा जो आचार्य ने दिए है हम उसको ही फॉलो करना है, जो कि चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंचरत्न प्रभु, thank you so much. If I committed any mistake, please forgive me. Thank you for your lecture. Just your mercy, what I can speak in front of you. That is why I always ask forgiveness from you. Just in front of you, I am nothing actually. I just learn little bit by your blessing only. So very nicely explained, so that all the students they can hear and realize it very nicely. just, Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, Prabhuji. So thank you so very much for giving your valuable time and also explaining in Hindi, so most of the like participants and devotees could hear.
So we have some questions devotees have asked. Please. So Subhasri Mataji has asked, like, how can we understand what is the gift of God? In some situation, we cannot understand what is good and what is bad for us. What should one can do at that time? So, first thing is that the biggest gift of God to you is that this body, okay? And this body is given that you see many people. हम जब ये में थे, when I was in NIT राउरकेला, तो हम एक संस्था के साथ जुड़े थे और हम लोग जाते थे एक लेप्रोसी कॉलोनी में, और हम पर्सनली हम बहुत लेप्रोसी लोगों का क्या होता है कि ये जो अंगूठा होता है वो पूरा पस से भर जाता है, पुज जो हम बोलते पूजा, तो ये पूरा भरा होता है। तो मैं जब उनको क्लीन करता था, कभी क्लीन करते करते पूरा अंगूठा ही निकल जाता था वहीं से, और हमारा दोस्त लोग बोलते थे अरे तुमको भी हो जाएगा, तुम ये सब क्लीन क्यों करता है। लेकिन वही टाइम बहुत हम लोग ऐसे क्लीन करते थे, तो हम उनको जब देखते थे, और कुछ कुछ लोगों का ये हाथ भी नहीं था, तो हम लोग खिलाते थे, मैं खिलाता था उनको, बहुत सारे ओल्ड पीपल, तो अराउंड 35 लोग थे उनके जो बस्ती में, तो जो कि हम खिलाते थे। तो इसीलिए हम वही दिन से देखें कि ये शरीर हमको जो मिला, और ये शरीर में हम खा सकते हैं, घूम सकते हैं, और इतना सुंदर कुछ पूरा बढ़िया शरीर है ना, हमारा शरीर में कुछ ये है, तो इसे जब शरीर मिला, इससे बड़ा गिफ्ट क्या मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट मिला, जैसे चंदन, एक आदमी को चंदन मिला, और चंदन जाके एक राजा ने खुश हो गए, वो एक आदमी के ऊपर दे दिए एक चंदन का बगीचा। वो चंदन का बगीचा को वो क्या करता था, जाके अपना घर में कुकिंग करता था उसमें। तो वैसे हमारा हालत है, ये बॉडी है गिव दिस गिफ्ट गॉड हैज गिवन अस, एंड आप देखेंगे हमारे पास सब कुछ दिए है, हमारा सारी शरीर, आंख भी बढ़िया है, आंख को दिखाई देता है, खाने के लिए भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम लोग नहीं जानते हैं उसको कैसे यूज करना है, यही बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ये शरीर जो हम मिला भगवान का बिगेस्ट गिफ्ट है, और क्यों मिला, भगवान का केवल सेवा के लिए। इसीलिए हमारा लॉर्ड शिव सेज टू मदर पार्वती इन कठोपनिषद, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक मंत्र तस्य नामानियामि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एक केवल भगवान की सेवा के लिए इस शरीर मिला है, और कुछ नहीं। हम बोलेंगे हमारा बच्चे भी है, वो लोग अपने आप, वो लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे जब भगवान की सेवा हम लोग। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी मिला गिफ्ट है, दुर्लभम मानुषम जन्मम, इसको यूटिलाइज करना चाहिए, और ऑलवेज भक्त के साथ रहना चाहिए। वैसे ही इसको अब भक्त के संग रहेंगे, तो जैसे आप जाएंगे तिरुपति में, आप खड़ा रहिए तो आपको लोग पुश करके ले जाएंगे, आपको कोई जरूरत नहीं होगा कि आपको चलना है, आप जस्ट खड़ा रहिए, आप इतना लोग आपको पुश करेंगे, आप जाके बालाजी को दर्शन करके आप चले जाएंगे। वैसे हम भक्त के संग में घुस गए तो भक्त लोग हमको पुश करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन that is asked by Vishnu Murthy. So the question is, how can we prevent और एक क्वेश्चन वो जो how in good in bad time how we take care, most important thing, हम जब bad time आता है वही time we should take we should take guidance, who is our teacher actually, especially from the spiritual teacher, not from material teacher. Like one of my teacher just recently did suicide. He was my one of the good teacher in our class,
but he did in Barampur only. He did suicide last week. So it is very painful actually. We should take guidance who is actually guiding us our life. Like in your Barampur, our Pancharatna Prabhu is there. You can ask, he has so much experience, so much realization, so much ups and downs in his life. So they know better, because serving others, they take lot of pain. By preaching is not so easy actually. When we give ourselves, and so much pain we get by preaching only. Sometimes people will ditch you, sometimes people will not care you, sometimes so many difficulties. And those who preach, they only knows what are the difficulties. Sometimes in preaching, those to whom you are preaching, they will scold also too. Like the professor told me yesterday, "Arey, you are disturbing all the students." So this is the reward. So I tell that the professor. So that is why we should take guidance from our teachers. And that will definitely, today we may not be good for our senses, but it is good for your soul, which is Krishna want that soul to come back. Okay? Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, there is one devotee, Soumya Ranjan Prabhu. He wants to ask a question. Can you unmute, Prabhu? Yes. Soumya Prabhu, you can ask your question. We are not able to hear you. Hare Krishna, Prabhuji, is it audible? Yes. दंडवत प्रणाम प्रभुजी। प्रभुजी एक्चुअली मेरा प्रश्न था कि आप आज साउंड के बारे में बता रहे थे, तो ये तो साउंड के बारे में था, जो कुछ भी थोड़ा सा अलग है। मेरा जो प्रश्न है, जैसे कि हम मटेरियल साउंड सुनते हैं और उससे प्रभावित हो सकते हैं और प्रभावित होके मतलब बायस भी हो सकते हैं, वैसे ही जब हम कुछ देखते हैं और जो सो कॉल्ड ब्यूटी होता है हमारे आंखों को भा जाती है बहुत ही जल्दी, और हम लोग उससे भी मोहित हो जाते हैं। किसी मतलब ये साइट का इफेक्ट होता है कि हम लोग देखते हैं और तुरंत उसके पीछे भाग चलते हैं। उससे कैसे बचें? जो कि सो कॉल्ड ब्यूटी है, मतलब इतने सुंदर कृष्ण है हमारे पास, इतने सुंदर डेटीज है, प्रभुपाद हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था किए हुए हैं, फिर भी हम संसार के मतलब सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं, तुरंत देखते हैं और उससे प्रभावित हो सकते हैं। इससे कैसे बचा जाए? प्रभु जी कृपा करके। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा एक ब्रह्मचारी इन वृंदावन टेम्पल लॉन्ग बैक हम बैठ के बात कर रहे थे, वो IIT कानपुर का है। तो हम लोग जब रहते हैं भक्त के एसोसिएशन में, हम जब भक्त के एसोसिएशन में रहते हैं, कितना भी मटेरियल कोई किसी का कुछ हो, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, हम भक्ति करते हैं लेकिन प्रीचिंग नहीं करते, बिकॉज यू डोंट प्रीच इट। प्रीचिंग मीन्स प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि घर में रह के हम लोग बढ़िया से हम जप कर लिए प्रभु जी, हम भक्त ऑफरिंग भी करते हैं प्रसाद, एंड हम खाते हैं, सब पढ़ते भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी हम लोग नहीं करते। प्रैक्टिकल क्या होता है, हमारा जो भक्ति है, प्रैक्टिकलिटी क्या होता है, जब हम दूसरों को देंगे, जब आप देंगे, जैसे हम आप घर में रहते हैं, आप बोलेंगे कि हम भक्त है, हम ये इधर सबके पास बड़ा बड़ा कार है, सबके पास बंगला, कहीं पे कोई फ्लैट लिया, ऐसे ही बात करेंगे। यू गो टू कोई प्रोफेसर। तो मेरा पापा, माय फादर जब आए थे इधर, मुझे बोले ये सब कार किसका है? हम बोले ये सारी फैकल्टी का है ना, तुम्हारा कार कहाँ गया? और बोले भगवान तो दिए है 2 पैर बढ़िया सा, हाँ जब पैर नहीं चलेगा तो कार खरीदेंगे, पैर तो चलता है ना अभी। तो पापा गुस्सा हो गए, समझ ना। When we don't, if we want to show as an example, you must practice it. और जब हम दूसरों को नहीं बोलेंगे ना, जैसे हम स्टूडेंट लोगों को बुलाते हैं 5 बजे मंगल आरती, हम सोता रहेंगे,
तो कैसे स्टूडेंट लोग, थर्ड दिन स्टूडेंट आएंगे बोलेंगे ये तो थर्ड क्लास है। ये होता है मटेरियल मोड्स। क्या होता है, हम लोग जाके कभी प्रीचिंग नहीं करते हैं, ओनली खुद प्रैक्टिस करके खुद सेटिस्फाई रहते हैं। तो हम तो देखेंगे तो वैसे ही दौड़ेंगे ना दुनिया के पीछे, क्योंकि ये दुनिया इसी के लिए है। जब प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे नहीं नहीं नहीं, आई हैव स्पोकन लाइक दिस, कैसे मैं जाऊंगा उसको करने के लिए। मैं बोला व्हेन आई देयर हम नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये जब बोलते हैं पब्लिक में, हम कैसे कर सकते हैं? ये होता है। इसीलिए प्रीचिंग में आपका सारी अनर्थ चला जाएगा एंड यू विल सी दैट यू विल बिकम मोर हम्बल। आपके सामने कोई आके रखेगा इतना बड़ा सोना का भांड, ये ले लो, ये भक्ति है, ये माला यहाँ है, और जैसे यू विल नॉट लुक एट। तो इसीलिए हम लोग को प्रीचिंग करना चाहिए, स्पेशली जब यूथ होता है। हम लोग डेली कुछ ना कुछ प्रीचिंग, कोई भी वे में प्रीचिंग करना चाहिए। जैसे हमारा अभी एक गांव है इधर, हम लोग जाके वो गांव में थोड़ा थोड़ा कल्टीवेट किए थे। अभी पूरा 7 दिन तक वो लोग कीर्तन करते थे, डेली यहाँ से कंट्रोल करते थे। हम लोग नहीं जा पाते, फिर भी कंट्रोल करके प्रीचिंग का बहुत सारे माध्यम है। और 3 दिन में पूरा इतना सारे भक्त लोग प्रसाद बनाते थे, खाते थे, सब करते थे। तो इसलिए प्रीचिंग करिए, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। ये भागना, आप नहीं भागेंगे, लेकिन ये सब आपके पीछे भागेंगे उसके बाद, आप देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न है हमारे ये विष्णु प्रभु जी पूछ रहे थे कि while chanting like how to prevent yawning during chanting. Then walk little bit, again you sit. बैठने से जब यानिंग आता है वॉक करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन चैंट बाय वॉकिंग आल्सो। ओके, इफ मॉर्निंग ज्यादा ड्राउनिंग होता है, सम एक्टिव सर्विस लाइक कटिंग वेजिटेबल, मेकिंग फ्लावर गार्लैंड, अगेन यू चैंट आफ्टर 10-15 मिनट। सो मन को एक्चुअली, बिकॉज इतना हमारा मन शुद्ध नहीं कि मन पूरा चुंबक जैसे लग जाएगा ये जो नाम में, वो तो स्टेज नहीं है। तो हम लोग, मैं तो अभी भी मैं ऐसे ही मेरा हालत है। ओके, आपकी जैसे हालत मेरा भी ऐसे है। तो आपके जैसे बरहमपुर में आता हूँ, देखता हूँ कि भक्त लोग बैठ के पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा बढ़िया सा जप करते हैं। हमको इंस्पिरेशन मिला, और यहाँ भी सारी स्टूडेंट को हम 5:45 to 7 o'clock only chanting also हम भी यहाँ फिक्स कर दिए। So everybody we chant together here also. So no problem, some active service you do if it is you are getting drowning or getting yaning. Prabhuji, Subudhi Nagaraju is asking one question. The question is, nowadays devotees are suffering more than the outsiders. Why it is happening so, and how to come out? Because we are not committed to Srila Prabhupada. We are not committed. There is an emotional level of, we should never take Krishna consciousness emotionally. It is a practical, and nobody, it is a complete science, you must understand it. Most of the time we take devotional service as emotionally we take. One brahmachari, he is now the secretary to Bhakti Purushottam Maharaj. He was practicing in my home. So one day he previously committed, and I told him to join somewhere as a brahmachari. So he is now as a secretary to Bhakti Purushottam Maharaj. So he called me, told me, I asked him, have you met him to Bhakti Purushottam Maharaj? He told, yes, Prabhuji, I met him, and he told to become my secretary. I told, yes, you got the biggest service, do that one. No, Prabhuji, many devotees are telling that it is very difficult to become secretary.
So many difficulties, this, that. He told so many things. I told, you go for doing service or to find this thing. I scolded him so heavily. I told, wherever there is a pain, you must do that only. Not it is that you will become a brahmachari. And wherever you want to enjoy, in that same way, you want to go to in the Kirtana party, you want to go this, that is not it. It is given by the authority, try to do your fullest extent. When I scolded, he is very much fixed now. He is doing very nice actually, he is arranging everything. And since last 8 months, ho gaya. And he calls sometimes, Prabhuji, I am very happy. And now, because initially there is always pain. That is why the devotee don't want this thing. Emotionally, if you go, you will always do the mistake. Understand? The complete science. And when you take it, even you will forget your own father, mother, everybody. Those who come to you, you will forget everyone. This is the only way that we can develop. Or else emotionally when we became, then we will connect, we will see, like we have some devotee. He is so emotional, okay. He can go to mother-in-law's funeral, but cannot go to father's funeral. This is kind of, they cannot. We should not become like that, okay? Take Krishna consciousness and have faith. This is the only way, there is no other way for me. That's why the devotee suffers more. Because they take Krishna consciousness emotionally. Okay? Yes, Prabhuji. Thank you very much. Prabhuji, the devotee you mentioned, is it Sagar Prabhu who is serving Bhakti Purushottam Maharaj? Yes. Okay, I am in contact with him for services. He is very helpful. The first session we had in Zoom is by Bhakti Purushottam Swami Maharaj, and he helped, supported continuously Yes, later on also. Sagar. Yes. Sagar Yes, sir. was here only. Okay. He was here for 4 or 5 years. And then he shifted. After his sister's marriage, 2 Okay. brothers, they have joined there. They is from Nepal. Yes, Prabhuji. He was doing here BSc and MSc. Okay. So Prabhuji, one more question we have from Priyamada Mataji. So the question is why the transcendental sound of Hare Krishna do not affect me? No problem. You go on chanting. जैसे एक पत्थर के ऊपर इवन ए वाटर वन ड्रॉप फॉल्स, एक दिन आता है कि वो पत्थर को भी होल हो जाता है, वैसे ही we should not worry for whether it is affecting or not. We should go on chanting. Then there will be a small hole to spiritual world. Don't worry. And you will enter through that hole. Okay? So ऐसे पत्थर को भी जैसे पानी इतना सॉफ्ट है, वो भी एक ड्रॉप गिरता है तो बहुत दिन के बाद देखेंगे पत्थर भी थोड़ा होल हो जाता है, तो वैसे भी हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसे ही है, तो कोई प्रॉब्लम. प्लीज गो ऑन चैंटिंग एंड आई मस्ट थैंक यू दैट यू वेरी नाइस क्वेश्चन. एवरीवन आस्क्ड नाइस क्वेश्चन. Yes. Thank you, Prabhuji. One more question is there by Smita Mataji. It's a little practical related to the session also. Like, she has a question that we should not be more materialistic, but when it comes to career concern, there are a lot of vibration of sounds regarding competition, politics, and partiality, which hurts a lot. It mentally affects everyone. So, how to handle this kind of situation? That is actually one of my student had the similar kind of problem in Delhi. In his office, when he go, there are many people, they will tell, अरे ये तिलक वाला आ गया, ये हो गया, तो ऐसे ही बहुत उसको ऐसे करते थे, पूरा ऑफिस पूरा एग्नेस्ट था. तो मुझे एक दिन बोला, बहुत डिप्रेस होके बोला कि मैं छोड़ दूं क्या सर, मैं जॉब छोड़ दूं, वो नोएडा टेम्पल में. Then I told him, why? Initially you are interested for job, तो जॉब तो मिल गया, मिलने के बाद तुम क्यों डिसैटिस्फाइड है? तो उसके बाद मैं उसको बोला, तुम डेली क्या करो, 1 पैकेट
ऑफिस में तुम्हारा ग्रुप में कितना लोग है? बोला कि मेरा ग्रुप में 16 लोग, 16। मैं बोला 1 पैकेट लड्डू एवरी 2 दिन में यहाँ नोएडा इस्कॉन से लो, डेली डिस्ट्रीब्यूट करो। बोलो कि आज मेरा भाई का बर्थडे है, लो 1-1। आज मेरा बर्थडे है, 1-1 दो। तो डेली वो लेके 1-1 पैकेट वो 2-3 दिन में एक बार लेके सबको देता था। और 6 महीने के बाद सब लोग हमारा मंदिर में आ गए और जितना लोग को देता था सब लोग जप करने लगे सस्टेन। और तुम्हें जो सराउंडिंग था वो सराउंडिंग जो इतना डिफिकल्ट सराउंडिंग था, जस्ट बाय सिंपली गिविंग वेरी नाइस laddus every day. Who don't want? Everybody want to eat. So, but they don't know that it is like a medicine. You take it and it will affect. So wherever like this vibration, Mahaprasad is the biggest. Bring very nice sweet. 1 packet of sweet offered in our ISKCON in front of Radha Kant, and take and give, distribute everywhere. And people are there, they will eat it and they will become so habituated. Next they will ask that please give me some, have you got it? Like हम अभी ऑफिस में जब जाते हैं, हमारा सारी फैकल्टी आएंगे और मेरा बैग के अंदर ढूंढेंगे, अरे बेरा जी कुछ है या नहीं है? तो उनको पता है कुछ ना कुछ होगा। तो प्रसाद है so much. So don't worry, if the like that politics competition, देन वो लोग देखेंगे कि ना वही पे ना पॉलिटिक्स रहेगा ना कंपटीशन रहेगा, एंड देन यू विल बिकम द किंग। ओके, Thank you very much, Prabhuji, for this answer. Prabhuji, one more question that I have, like you mentioned, related to the emotions that we have, and it is difficult. Like you gave example of going for someone's funeral, not going for someone's funeral. So how to come out of the emotions, like to dedicate ourselves for Srila Prabhupada's mission, and how to use these emotions in this service, so that we can, I mean, there is everything that can be used for the service that we have. So how to use the emotion aspect so that we can become dedicated towards Srila Prabhupada. yes. जब भी whenever भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जितना भी भक्ति में कष्ट आता है ना, वो सबसे मेरा बड़ा आनंद है। तो वैसे हम लोग जब इमोशनल जब जाते हैं भक्ति में, पहले हमको मजा आता है कि कीर्तन में, उसके बाद संप्रसाद में, ऐसे मजा आता है। वो सारी चीज इमोशनल होते हैं। और जब वही चीज हम दूसरों को बताते हैं तो धीरे धीरे हमारा इमोशन ट्रांसफॉर्म होता है कि डेवलपिंग आवर कंपैशन फॉर अदर्स। जब इमोशन जब ट्रांसफॉर्म होता है, जो कंपैशन दूसरे के लिए और दूसरों की भलाई के लिए, तब हम लोग को हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पिलर बनता जाता है। और जितना भी आप सोचेंगे दूसरों को देंगे, तो उतना भी आप देखेंगे आपके अंदर कंपैशन और आपका अंदर जो अहम भाव है वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि आप जब जाएंगे सोसाइटी में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देगा। अरे ये आ गया, बाबा आ गया, ये आ गया, तो कोई रेस्पेक्ट नहीं। तब आपको पता चलेगा। आप जब भक्त लोगों के जाएंगे, फॉर एग्जांपल मायापुर और वृंदावन हम जाते हैं, जब हमारा ये टाइम पे जो देखते इतना लाख लाख भक्त है, तो आप भी सोचे हम कितना बड़ा भक्त है, बड़ा इनसिग्निफिकेंट, ऐसे मिलियंस में एक है। तो इसीलिए हम ऑलवेज इमोशनल जब लेते हैं, तो वो इमोशनल को ट्रांसफॉर्म होगा जब when we go to somebody and beg, like Nityananda Prabhu used to go and beg. Nityananda Prabhu used to go and beg that please chant Gauranga's name, please chant Gauranga's name. तो हम लोग को ऐसे जब emotion transform into the activity of Krishna conscious preaching, then you will become strong. If you don't preach, you can never become strong. Never become. He may chant 64 round, 108 round. If we don't give, if we have some material possession,
we will give for Krishna. We have anything, we give for Krishna. Then only, if we will see that, oh, I have to make for me LIC when I will die, then you cannot get Krishna. We should keep something, but not this so much like today's world. I have to make a house where I will stay. When Krishna, when he has given you, he will give a house. He will give you everything. That is what I told long back to this Sagar. I told, leave this place and go. Don't become useless. You become one of anyone you should become. So he's serving now nicely. And I tell, not that is not enough. You must, after that, you must try to preach. So you go to one place in the Gaur is a place. They go for preaching also in Nepal. So that is what we should go. And in Berhampur, everywhere you go to school, you go to small children, you go to all householders. So many ways we should preach, and that will transform our emotion into compassion. That compassion you can understand what your strongness in devotion will come. Don't mean little in the we think, oh, he is like this devotee, he is like those are the doesn't matter. Those are nothing actually. For a preacher, who cares? That's why I tell my students also, when one student will come, I am happy. I don't care, not required thousands of students to come. One student is sufficient to preach. That doesn't matter. Okay. So please go and preach. More you preach, then the emotion will become your compassion. Okay? Thank you very much, Prabhuji. Prabhuji, Gopinath Prabhu has asked one question. Can you please tell me, related to this only, can you please tell me that what will be the symptoms that we are emotional in bhakti, and symptoms when you understand the signs as you have mentioned now? The symptoms when you get, whenever you get some kind of difficulties, some near and dear died, and some mishappening, reverses of life appeared in front of you, how you act. If you are not affected, you are not emotionally attached. If you are affected, you are emotionally attached. Okay? When reverses come, and if something, some big disease come to me, if I will go, oh, corona, 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 then we are, where is your emotion? Where is your devotion? You have taken shelter of Krishna. जैसे कोई आदमी समुद्र में खड़ा है और समुद्र के लहर से वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन वो खड़ा है, ऊपर से नीचे उसको करता है समुद्र, फिर भी वो खड़ा है वहीं पे. दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस. ऐसे मटेरियल ऊपर नहीं आएगा. कोई भक्त को ऐसे डिफिकल्ट आता रहेगा, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, वो चलता ही रहेगा. लेकिन हाउ फर्म फिक्स्ड वी आर कॉन्सेप्ट, ऐसे डिफिकल्ट टाइम में आपको पता चलेगा. ठीक है जी Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. So here we have a last question. Many a times I do think that something wrong is going to happen with me, and this thinking bothers me a lot. So why this is happening? something bad thing happen. Yeah, I mean something wrong is going to happen with me. Some Going to devotee. happen. That Yes. is why you think going to happen. For going to happening means Krishna is there for you also. If rain will come, when you have an umbrella, why you are fearful? Simple thing. When something will happen, let it happen. Who cares? Okay. Now there is nothing, no. So you live for the present. That's why we chant every day Hare Krishna. Or else one day we will chant and leave. For one whole year it will pass, again next year once you will chant. Like people do hear the Bhagavata Saptah. We are every day, we have umbrella, anytime. We are ready. If Krishna will come, oh, Dr. Ramana Manohar, now you have to go back, live.
Yes, yes, I am ready. Jai Hind, no problem. Hare Krishna. So that is why we should never worry actually. Don't worry. What something happened, why should we disturb? Faith in this holy name. And chant more, chant more, chant more. Associate more with devotees. Distribute Prabhupada's book. You will get strength. Okay? Thank you so much, Prabhuji, for giving us your valuable time. So we are very fortunate, like getting your association, and also like extending yourself for like the question answer session with the practical answers that you have experienced and you have guided different devotees. So thank you very much, Prabhuji. Really grateful and thankful to you. And I request Pancharatna Prabhuji to thank you. You can unmute, Prabhuji. I am requesting all the students, they should take their own time and visit Dr. Raman Manohar Beheraji's camp and stay 2 days. Then they will realize how he is surviving his personal life by doing pure devotional service. And I am thanking to Dr. Ranjan Beheraji for his wonderful class. Hare Krishna. Thank you so much. Just please bless me so that I can be in this devotional life. Thank you. Hare Hare Krishna. Thank you very much, It is a great Prabhuji. honor in front of you to speak, but I am very humbly pray to you. Please bless me and so that I can. Prabhuji, we have got one question from Rajeshwar Prabhu. In the end, like, can I ask? It looks little important. It will be helpful for others also, I think. Can I ask the last question? Please, please. It seems that positive sound has little impact to us, but negative sound impacts us so for long time and disturbing our concentration. So how we will receive the positive vibration properly? Positive vibration you will receive when we are committed to our teacher. For example, the good association, sadhu sang, sarva shastra kaya, labhe matra sadhu sang, sarva. We must try to take the association of devotees more and more. If our negative sound affects more, we should do some kind of active service. Okay, not inactive like you chanting. When it is affecting your negative vibration, you will see that it will also reduce your chanting. Many things will happen. So better you should chant more and associate more. In the association of devotee, you chant and do some active service. If you are getting some negative vibration, you stay in the temple sometime, do some service like cleaning or this. You will see that your mind will change. So most of the time in that critical situation, we should not again come to that same mud again. We should go to mud again. We try to, no. We should come where there is no mud at all. So that is why I always tell my students that some students, they come with some problem. I'll tell, you arrange this book. We have a lot of books. So I'll tell you arrange this room. So they will be very busy till 1 o'clock. They will arrange and take prasad. They will. Not like that. So come to temple. Do lot of services are there, starting from cleaning to everything. Please do more service. No problem. This will come and. Thank you very much, Thank you Prabhuji, very once much. again. And I request all the devotees to unmute. We will chant Hare Krishna Mahamantra 3 times for Prabhuji together. And we thank Prabhuji. So let us chant Hare Krishna Mahamantra 3 times for his best Raman Manohar Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Thank you very much, Prabhuji. Dandavat pranam. His Grace Raman Manohar Prabhuji ki jai. Srila Prabhupada. जय Prabhupada ki jai. जय